بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ چارپائی پر لیٹا بوڑھا وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، زور زور سے کھانستے ہوئے جیسے اس کے انجر پنجر سب ہلنے لگے۔ منہ سے لعاب بہ رہی تھی، کوہنیوں کی مدد سے وہ اٹھ گئی۔ میلا کچلا لحاف اپنے اوپر سے ہٹایا اور قمیض کے دامن سے راز صاف کرنے لگی۔ اتنی مشقت کے بعد ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ جس کمرے میں لیٹی ہوئی تھی وہ کمرہ ان کی معاشی صورتحال کا واضح آئینہ تھا۔ ایک کونے میں چارپائی رکھی تھی، دوسرے کونے میں چولہا رکھا تھا جس کے ساتھ لکڑی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا گیا تھا۔ لکڑی کے ٹکڑے کو شیلف کی شکل دینے کے لیے اس کے نیچے 2 اینٹیں رکھی گئی تھی۔ چارپائی کے عین سامنے دیوار پر آئینہ لگا ہوا تھا، جگہ جگہ سے کھرچا ہوا، جس میں عکس بھی کافی غور کرنے کے بعد واضح ہوتا تھا۔ ایک جانب دیوار پر کیلیں ٹھونک کر کپڑے لٹکائے گئے تھے۔ کپڑوں کے عین نیچے لکڑی کا ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا جس کا تالا کب کا ٹوٹ چکا تھا۔ عورت کھانستے کھانستے تھک کر واپس لیٹ گئی۔ دھوئیں کی مانند اس کے منہ سے سانسیں نکل رہی تھی۔ ہانپتے ہوئے اس نے پوری آنکھیں کھول رکھی تھی۔ اتنے میں باہر چھوٹے سے برآمدے کے کونے پر بنے ہوئے غسل خانے کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک لڑکی نکلی۔ وہ چادر کے پلو سے اپنا منہ پونچھتے ہوئے اس کمرے کی جانب آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے تھوڑا سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ اندر کمرے میں آ کر سیدھے آئینے کی جانب بڑھی۔ سرخ و سفید رنگت کے ساتھ لمبے بال پشت پر بکھرائے وہ ایک دلکش نقوش والی لڑکی تھی۔ اس نے جارجٹ کا سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ سرخ رنگ میں وہ گلاب لگ رہی تھی، وہ گلاب جو اپنی آخری ایام گزارنے کے بعد یا بکھر جاتا ہے یا رنگ بدل کر سوکھ جاتا ہے۔ پلنگ پر لیٹی بوڑھی عورت کی نظریں اس کے کپڑوں سے پھسلتے ہوئے اس کے چہرے تک گئیں، جبکہ وہ لڑکی اس عورت سے بے نیاز دکھائی دے رہی تھی۔ آئینے میں ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ گنگناتے ہوئے واپس آئی اور خستہ حال صندوق کی طرف بڑھی۔ صندوق کا ڈھکنا کھول کر اس نے اندر سے ایک پرانا پرس نکالا اور واپس آئینے کی جانب بڑھی۔ اب وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے کاجل لگا رہی تھی۔ پھر اس نے خوشبو چھڑکی۔ سیلن زدہ کمرے میں دھیمی سی مہک پھیلی۔ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ چارپائی پر لیٹی بوڑھی عورت کی نحیف سی آواز گونجی۔ بتایا تو تھا آپ کو، یہ سب سامان ہماری باجی نے لے کر دیا ہے۔ وہ جہاں میں کپڑے سینے جاتی ہوں کہہ رہی تھی صاف ستھری ہو کر آنا۔ تم لیٹی رہو، زیادہ بولو گی تو کھانسنے لگو گی۔ آ جاتے ہوئے تمہاری کھانسی کے لیے دوا لے کر آؤں گی۔ کہتے ساتھ اس نے کیل پر لٹکے کپڑوں کے ساتھ لٹکا ہوا نفیس پرس اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ پیچھے چارپائی پر لیٹے وجود کی آنکھوں میں جھانکو تو قیامت لرزاں تھی۔ پلکوں کے پار سے ایک پرانا منظر دھیرے دھیرے آنکھوں کے راستے باہر نکلا اور جھڑیوں زدہ چہرے پر بہہ گیا۔ سچ ہے کہ اپنی بوئی فصل کاٹنے کا وقت آسان نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ابا بچپن میں چلے گئے اور پیچھے رہ گئی اماں۔ ابا کے جانے کے بعد اس کی ماں نے اسے پالا۔ 2 ستونوں پر کھڑی چھت کے نیچے سے ایک ستون گر جائے تو عمارت کا وزن ایک ستون کے اوپر آتا ہے۔ اس کی ماں نے ہر طرح کا وزن اٹھائے رکھا لیکن چھت کو گرنے نہ دیا۔ پھر اس کو پال پوس کر بڑا کیا۔ اگرچہ وہ اسے پالنے کی حد درجے نالا نظر آتی تھی، اولاد بھی بڑی ناشکری قوم ہوتی ہے۔ باپ کے سخت ہاتھ اور ماں کی لڑکھڑاتی سانسیں دیکھ کر بھی راضی نہیں ہوتی۔ تو اس کی اماں کا واحد ذریعہ معاش اچار تھا۔ گھر میں بر وقت اچار کی بو شرارتی بچوں کی طرح ہر کونے میں گھومتی رہتی۔ بلکہ گھر کیا تھا، ایک برآمدے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے ساتھ ملحق ایک غسل خانہ تھا۔ اس کا پورا بچپن اماں جیسی سخت عورت کے سرپرستی میں گزرا۔ 5ویں پاس کرتے ہی وہ بھی اماں کے کاروبار میں شامل ہو گئی۔
गाजर का अचार, हरी मिर्च का अचार छोटे से बरामदे में बनाई गई क्यारियों की बदौलत था। क्यारियों में जो ही मिर्चें लगती, अम्मा उतार कर पानी में उबालने के बाद मसाले लगाकर तेल में डुबोकर डब्बे में बंद कर देती। अचार जब पकने लगता तो अम्मा डब्बों से निकालकर शॉपर में डालकर बिल्किस आंटी को दे आती और वो अम्मा को अचार के पैसे अदा करती। हर हफ्ते के इस मामूल में जब रात के 8 बज जाते तो वह हाथ धोते हुए बड़बड़ाती, इस पूरे बकवास चक्कर में मुझे क्या मिलता है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी और मसालों की बू हर वक्त मेरे से चिमटी रहती है। इन दिनों जब अम्मा से मिलने घर में कोई भी आता तो उसकी तरफ देखकर एक दफा जरूर कहता, ये तुम्हारी लड़की तो बहुत सोनी है। तब इसने आसमान के 2-3 चक्कर लगाए और इन्हीं हवाओं में उड़ते हुए अम्मा से जिद करके एक अदद आईना लगवा लिया, जो अम्मा ने सीधा अपनी चारपाई के ऐन सामने लगा दिया। अब जब भी वो आईने में देखने के लिए खड़ी हो जाती, पीछे से अम्मा की तंबी नजरें आईने से चिपक जाती। अब 8 बजे के बाद हाथ धोते वक्त होने वाली बुड़बुड़ाहट का वतन बदल गया था। मैं तंग आ गई हूँ इन तरह तरह के मसालों से, छोटे से कमरे से, 2 वक्त की रोटी से और अम्मा से। और फिर इसकी किस्मत निखरने लगी कि बिखरने लगी। जो इसकी माँ बीमार हो गई, वो चारपाई से लग गई। इन्हें टीबी हो चुकी थी, हर वक्त खांसती रहती। इन दोनों जब माँ के अंदर मजीद जान न रही तो बिल्किस आंटी तक अचार पहुंचाने की जिम्मेदारी इस पर आ गई। अचार पककर टीन के डब्बों में बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो शॉपर में डालकर बाहर निकली। उफ, बाहर की दुनिया भी कितनी अजीब है। वो चलते चलते झूम उठी। इसने कई सालों के बाद दुनिया देखी थी। इसे पता ही नहीं था कि ये जितनी हसीन है इतनी बदसूरत भी है। खुले हवा में खुशी से चलते हुए वो भूल गई थी कि जन्नत को तो वो घर छोड़ आई है और जन्नत से बेहतर भला कुछ और हो सकता है। खैर, ताजा ताजा खुमार तो हो सकता है दोज़ख का भी चढ़ता हो। इसी खुमार के जेर असर वापस सीधे घर आने के बजाय इसके कदम सड़क के दूसरी तरफ बने दुकान की तरफ उठ गए। रंग बरंगी चूड़ियां दूर से ही दिखाई दे रही थी। वो तेज रंगों के पीछे पागल हो जाने वाली थी। रंग भी ऐसे थे कि शाम को चढ़े सुबह की धूप में उतरे। खैर, चूड़ियां इसकी कमजोरी थी, बल्कि चूड़ियां क्या, परांदा, झुमके, सुर्खी, जंजीर, खुशबू सब ही इसकी कमजोरी थी। इंसान के अंदर अगर हल्का सा लालच भी पैदा हो जाए तो अफरियत बनकर खा जाता है और डिकार भी नहीं मारता। खैर, बने बनाए मंसूबे के मुताबिक दुकान के अंदर पहुंचकर इसे याद आया कि इसके पास तो पैसे ही नहीं। इसने मुस्कुराते हुए चूड़ियां उठाई और अगले दिन पैसे देने का वादा करके घर वापस आ गई। और अगले दिन वादे करते करते वो 1 हफ्ते में दुकान का आधा सामान घर में ला चुकी थी। अब 8 बजे के बाद होने वाली बुड़बुड़ाहट के जुमले बदल गए। अम्मा तो कभी चाहती नहीं थी कि मैं खुश रहूं और कुछ अच्छा पहनूं। चारपाई पर लेटे लेटे ही माँ ने जब सख्ती से इससे पूछा, सादिका, ये सब कहाँ से आ रहा है? तब तो वो खामोशी से बाहर निकली, लेकिन इसके बाद इसके जुमले बदल गए। अगले दिन उठते वक्त वो अपने ही जोबन में थी। आईने के सामने खड़े होकर हल्का सा बुड़बुड़ाई, आज मैंने कुर्बान से पूरी बात करनी है। फिर जब वो तैयार हो रही थी तो माँ चारपाई पर लेटी हुई थी और कड़ी नजरों से इसे देख रही थी। खैर, इसे किस बात की परेशानी थी। जब इसने दुकान से उधार लिया हुआ सुर्ख जोड़ा पहन लिया, बाल समेटे और खुशबू छिड़कने लगी तो माँ ने सख्ती से पूछा, ये खुशबू कहाँ से लाई है तू? अम्मा बिल्किस आंटी ने दी है। इसने काजल भरी नजरें उठाते हुए नागवारी से कहा और बाहर निकल गई। इसने देखा था अम्मा की सांस उथल पुथल हो रही थी, शायद फिर खांसी का दौरा पड़ने वाला था। इसने बाहर आकर क्यारी में छुपा बैग निकाला जो रात को तैयार कर रखा था। वो धीरे से टीन से बना छोटा सा दरवाजा बंद करके बाहर निकली। इसके कदम जमीन के बजाय हवाओं में थे, लेकिन इसे पता ही नहीं था कि हवाएं तेज चले तो मुंह के बल गिरा देती हैं। कुर्बान के साथ निकाह के बाद जब वो 3 दिन बाद घर वापस पहुंची तो दरवाजा बंद था। इसे देखकर इर्द गिर्द से मर्द बाहर निकल आए, औरतें छतों पर निकली, इसे घूर रही थी।
पहले वो थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर बेशर्मी से खड़ी रही। अब क्या लेने आई है बेहया? माँ को मारकर सुकून ना मिला जो अपनी बेशरम शक्ल लेकर फिर आई है। कहीं से आवाज उभरी और आवाज दर आवाज गूंजने लगी। लोग एक साथ बोलने लगे। शोर ही शोर था। वो आहिस्ता से पीछे हट गई। वापस अपने शौहर के साथ घर आते हुए इसका दिमाग सुन था और जहन के पर्दे पर वो आखिरी उथल पुथल सांसें गूंज रही थी। तो अम्मा मर गई। अब 8 बजे वाली बड़बड़ाहट दिन भर जारी रहती। लंबे लंबे सिमटकर 4 लफ्जों तक मुहित हो गए। यानी कि वो जो लंबे लंबे जुमले बोलती थी अब वो 4 लफ्ज में तब्दील हो गए। तो अम्मा मर गई। पहले पहल बेयकीनी से जुमला मुंह से निकलता, उठते बैठते फिर सोते जागते विर्द बन गया। इस जरबे खाने में 2 साल हो गए और जब इसकी बेटी 1 साल की हो गई तो इसका शौहर एक हादसे में चला गया। तब वो सही मानों में खुले आसमान तले आ गई। जिंदगी का इंतहाई कठिन दौर इसने बहुत सब्र से काटा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसकी माँ ने काटा था। वो दिन भर काम में लगी रहती। इसकी बेटी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। खर्चे बढ़ते जा रहे थे। अखराजात की फिक्र ने वक्त से पहले इसे बूढ़ा कर दिया था। लेकिन रात को सोते वक्त जब वो बिस्तर पर लेटती तो कहीं से तेज तेज सांसों की आवाज और वो नजरें पूरी रात सोने ना देती और वो थक कर भीगी आवाज में 4 लफ्जों का विर्द करने लगती। तो अम्मा मर गई। जैसे जैसे इसकी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे इसके अंदर इसकी माँ आती जा रही थी। पहले इसकी पेशानी पर बिल्कुल माँ की तरह सिलवटें पड़ गई थी और फिर इसकी आवाज भी बिल्कुल उनकी तरह सख्त हो गई। वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह आहिस्ता आहिस्ता खांसते हुए चारपाई से लग गई। अपनी बेटी को इसने सिलाई कढ़ाई सिखाई थी। वो इसके साथ ही इस बुटीक में जाती थी, लेकिन इसके बीमार होते ही अकेले जाने लगी। अब वो अपनी माँ की तरह चारपाई पर खांसती रहती और बेटी तैयार होकर चली जाती। वक्त पलट कर आ गया था और इसकी तरफ देखकर तालियां बजा रहा था, हकारत से, नफरत से, हसरत से। बड़े बूढ़े कहते हैं वालिदैन के साथ किया हुआ 7 नस्लों तक भुगतना पड़ता है। तो वक्त भी इस खौफ के जेर असर था और वो बिल्कुल अम्मा की तरह सहमी हुई छत की कड़ियां गिनती रहती। इसकी बेटी बुटीक जाने के लिए तैयार थी। वो सुर्ख रंग का जोड़ा पहने आईने के सामने खड़ी है। खुरचा हुआ आईना जिसमें सूरत भी बामुश्किल आधी नजर आती है। इसके लंबे बालों से पानी टपक रहा है, बिल्कुल किसी की यकीन की तरह। और जब इसने खुशबू छिड़की तो सारे कुवाड़ खुलते गए और माजी का एक जुमला बेसाख्ता इसके मुंह से निकल गया। ये खुशबू कहाँ से आई? जवाब इसे मालूम था। क्यों? क्योंकि ये वही जवाब था जो वो अपनी माँ को दे चुकी थी। इसकी सांसों की गर्दिश तेज होने लगी। हलक सूखता जा रहा था। कुछ कहने की कोशिश में कड़ा कर रह गई। बेटी जब बाहर निकली तो वो कोहनियों के बल बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊंची हुई। सामने आईने पर जब इसकी निगाह पड़ी तो वो खामोश थी। मौत इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगी। टूटा फूटा आईना आज वाज़िया दिखाई देने लगा। वो सूरत तो दिखा रहा था, लेकिन इसकी नहीं बल्कि इसकी माँ की। 3 दिन बाद जब बेटी किसी के साथ वापस आई तो घर का दरवाजा बंद था। मर्द बाहर निकले, औरतें छतों पर निकल आईं। शोर सा बढ़ गया और खामोशी हो गई। वही जुमले दोहराए गए। आईने पर एक और सूरत नक्श हो गई।